मैं न्यूज़ रीडर तो अशोक दुग्गल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਭੁੱਲਾ ਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸੌਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤ ਅਭਿਆਸ ਕੇ ਜੜਮਤ ਹੋਤ ਸੁਜਾਨ, ਰਸਰੀ ਆਵਤ ਜਾਤ ਤੇ ਸਿਲ ਪਰ ਪੜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਐਸਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਗੈਰ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਰਹਿਰਾਸ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਗਵਾੜੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸੰਨ 1965 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਫਗਵਾੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਸਾਂ ਮੈਂ ਆਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੰਨੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮਨਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ, ਕਦੀ ਫਲੌਰ,
ਕਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਲੌਰ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਬਈ। ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਸੰਤ ਚੁਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। 3 ਸੰਗਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਡੇ ਦੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 2-4 ਸੰਗਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1-2 ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ J&K ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, J&P ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਉਹ 5-4 ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਮਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ 2-3 ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਨੰਦਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਇਹ 4-5 ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਬੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਛਿਪ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਆ, ਕਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਰਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭਾਈ हमने किराए पर कमरा लेना है। वो कहता दे देवांगे, लेकिन क्या करना है इधर आपने, जुम्मे की जुम्मे कहने आना है, जुम्मे की जुम्मे क्या करोगे। मैं कहा भाई हमने झूठ नहीं बोलना, हमने यहाँ पर बैठ के अल्लाह का नाम ही लेना है, सत्संग करना है। मैं सच बोल दिया उसको। कहता यार तू ऐसा बंदा है पहला जिसने इतना बता दिया कि मैंने सत्संग करना है, यहाँ पर तो इजाज़त ही नहीं है, आपको मालूम है। मैं कहा मुझे मालूम है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं झूठ नहीं बोल सकता, आपको गलत बोल के मैंने कमरा नहीं लेना, मैं सच बोल के लेना है। तुम्हारी मर्ज़ी है दे दो, तुम्हारी मर्ज़ी है ना दे दो। तो बोलता 350 रियाल लूँगा। मैं क्या कोई बात नहीं, मैंने उसके साथ दूसरी बात ही नहीं किया। 350 रियाल में एक कमरा किराए पर ले लिया। उधर 8 साल हमने संगत किया। सामने बिल्कुल मस्जिद थी, मस्जिद के सामने कई महात्माओं ने मुझे बोला कि यहाँ पर तो मस्जिद है, यहाँ मुस्लिम आते हैं, वो आप पर एतराज़ करेंगे। मैं क्या कुछ नहीं होएगा, सच्चा पातशाह जो करेगा भला ही करेगा, यही जगह हमें सेफ़ लगी है। तो वहाँ पर हमने 8 साल संगत किया। उसके बाद फिर वहाँ से कमरा छोड़ करके हमें कोई और भी अच्छी जगह मिल गई, वहाँ चले गए। हम सत्संग करते थे कि किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी ने जाके मतऊओं को शिकायत कर दी, क्योंकि मतऊओं से वहाँ के लोग, हुकूमत भी डरती है, लोग भी डरते हैं सभी। मतऊए कौन होते हैं? मतऊए जिद्दां आपां धक्केशाही दे लंबड़दार कह दिंदे ना, इदां हुंदे उत्थे दे। किसी को भी वहाँ पर सवाए अल्लाह के दूसरे नाम से हम पुकार ही नहीं सकते, इस ईश्वर की आराधना कर ही नहीं सकते। हमें अल्लाह ही कहना पड़ेगा। जब भी हमने रब का नाम लेना है तो अल्लाह ही कहेंगे तो बर्दाश्त होता है। हम किसी भी नाम से ईश्वर कहेंगे, गॉड कहेंगे,
राम कहेंगे नहीं कह सकते वहाँ पर, ये सऊदीया का कानून है। हम जब संगत करते थे किसी ने जाके मतुओं को शिकायत कर दी, हमें पकड़ने के लिए आ गए। तो ये बात है 29 फरवरी 2008 की बात है, जुम्मे का दिन था। अच्छा जी, आपको याद है अभी? हाँ याद है जी, जब पकड़े गए तो याद कैसे नहीं होगा। हाथों में कंगन डाले थे, पाँव में भी पायलें डाली थी, तो कैसे नहीं याद होगा। पाँव में पायलें डाल के, हाथों में कंगन डाल के हमें पकड़ के ले गए। जब काजी के सामने जाके पेश किया तो काजी ने हमें सज़ा सुना दी। तो मुझे पूछता है शू इसमें तेरा नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम अना इसमाफी बरतपाल सिंह। मैं कहा मेरा नाम प्रितपाल सिंह है, क्योंकि अरबी में पे लफज नहीं है ना, बे लफज है। प्रितपाल को बरतबाल बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा शू इसमें, मैं कहा अना इसमाफी बरतपाल सिंह। तो वो कहते इनते भी सिख। मैं कहा ईवाना भी सिख के सभी हरा इसमा अल्लाह किदा इतने अल्लाह का नाम लेंदे हैं तुसीं? अना कुल्लू यौम जी यहाँ अना जी कुल्लू जुमा अना सभी इबादत। मैं क्या असीं तां इबादत करते हैं हर जुमे नूं आके। सज़ा देती, कहते तू तो नाम तू मुस्लिम नहीं है, इस करके उन्होंने कहा कि इनू 60 कोड़े मारो। तो मैनू 60 कोड़ियां की सज़ा। उस तो बाद 2 महीने कहता फिर इनू जेल च रखो जी, अगर फिर भी बच जाता तो फिर इनू जिहड़े मुल्क का हैगा आउट कर दिओ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ सज़ा तो हो ही गई है। मैं फिर बोल पाया, मैं क्या इनते माफ़ी मुस्लिम। मैं क्या तुम मुसलमान नहीं है। सुरते मेरे साथ बैठे थे, सुरते मुझे पकड़ने लगे। जब सुरते पकड़ने लगे तो काजी बोलता ला 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 माई होता था नफ़र हुआ कलम अन्ना कलम हुआ सवा सवा, इसको हाथ नहीं लगाना, इसके साथ मैं बात करूँगा। तो फिर काजी बोलता हाँ केफ इनते कलाम अना माफ़ी मुस्लिम। मैं क्या इनते माफ़ी अकीद मल कुरान। मैं क्या तेरा कुरान पर विश्वास ही नहीं है, तू कैसे मुसलमान हो सकता है? जब मैं ऐसे बोला कि तेरा कुरान पर विश्वास नहीं है, वो और भी हैरान हो गया कि मेरा कुरान पर विश्वास नहीं, मैं तो काजी हूँ और मुस्लिम हूँ, एक गैर मुस्लिम मुझे ऐसे कह रहा है। कहता केफ इनते कलाम अना माफ़ी अकीद, तू कैसे बोल दिया कि मेरा कुरान पर विश्वास नहीं है? मैं क्या इनते शूफ कुरान देखा है कभी? सफ़ा नंबर 48 आयत नंबर 3 लेश कलाम हादा युखाद नल्ला वल्लज़ीना आमनु वमा यखदाउन इला अनफुसिहिम वमा यशउरून। इसका मतलब तो वैसे पंजाबी में मैं जहाँ बताता हूँ कि किसी भी धर्म का आदमी किसी भी तरीके से रब की इबादत करता है, उसको तंग मत करो। अगर तंग करोगे तो आपका बुरा हो जाएगा, उसका बुरा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये अल्लाह पाक का फरमान है। मैं क्या पढ़ लो 14 नंबर सफ़ा 9 नंबर आयत पढ़ के देखो क्या कहती है। जब मैं ऐसे बोला तो वो हैरान हो गया, कहता केफ इनते फी अरब कुल्लू अरबी, केफ इनते फी अरब कुरान, तेनू इन्ना कुरान कैसे आता है, तेनू इन्नी अरबी कैसे आती है? मैं क्या हादा फी रहमत अल्लाह ये बरकत, मेरे ऊपर अल्लाह पाक की रहमत है। हादा फी रहमत मुर्शद ये बरकत, मेरे ऊपर मुर्शद की रहमत है, मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत है। उस वक्त के पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का उस टाइम 2008 में। तो फिर मुझे बोलता है ले सुनते माफ़ी सभी हज, तू हज क्यों नहीं कर लेता? मैं क्या केफ रो ना मिशान हज अलहेन माफ़ी सभी उम्रा, मैंने अभी उम्रा ही नहीं किया, मैं हज कैसे करूँगा? नहीं, पहले ये बताओ कि आपको जेल में रखा गया? एक दिन भी नहीं हुई मुझे। उन्होंने तैयारी कर ली कोड़े मारने के लिए। मैं तो सोच रहा था कि 60 कोड़े अलातूर मेरे पड़ेंगे तो मेरा तो बचेगा ही कुछ नहीं, चमड़ी उधेड़ देंगे। कोड़े तो 2-4 बर्दाश्त नहीं होते, कोड़ा तो एक भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। 60 कोड़े बर्दाश्त करने कोई खेल नहीं है। उन्होंने तैयारी कर ली हमको मारने के लिए जी, लेकिन एक कोड़ा भी नहीं मुझे किसी ने मारा। कैसे हो गया मैंने भी नहीं पता। सतगुरु ने क्या खेल रचाई है, उनके हृदय में क्या तब्दीली की है, ये सब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा हुई है कि उनके हृदय में कोई ऐसी बात बैठ गई। सतगुरु ने कोई ऐसी बात डाल दी कि उन्होंने एक कोड़ा भी, एक कहने लगा रहे बुजुर्ग आदमी है मत मारो इसको, उसने अरबी में बोला हदाफी शिवा, तो उन्होंने मैनू छड़ दिता जी। एक कोड़ा भी नहीं पिया जी मेरे। उस तो बाद फिर मैनू कहते ले सुनते माफ़ी सभी हज, तू हज क्यों नहीं कर लेता? मैं क्या केफ रो ना मिशान हज अलहेन माफ़ी सभी उम्रा। मैं क्या मैंने उम्रा ही नहीं किया, मैं हज कैसे कर लूँगा? बोलते इनते अरफ अवल सभी उम्रा। मैं क्या ना कुल्लू अरफ अय्या शाह इनते माई अरफ अना फी अरफ। जो गल तेनू नहीं पता मैं क्या वो मुझे मालूम है, जो आपको नहीं मालूम वो मैं जानता हूँ। आप मेरे से इस्लाम के बारे में जो मर्जी पूछो। मैं क्या 1152 सफ़े हैं कुरान के, आप जहाँ से मर्जी बोलो मैं बता दूंगा इतने नंबर सफ़े पर ये बात लिखी हुई है और मैं उसका तर्जमा करके बता दूंगा आपको। मैं अपने भाषा में तर्जमान भी हूँ। सारा कुरान मैं जानता हूँ। तो मुझे के फिनते आरफ कुल्लू कुरान। मैं क्या हदाफी रहमत अल्लाह ये बरकत, मेरे ऊपर अल्लाह पाक की रहमत है। मैंने कुरान पढ़ा नहीं है, मैं इंडिया में तो अरब भी नहीं पढ़ा हुआ, जानता भी नहीं। मुझे खुद भी कई बार हैरानी होती है इस बात की कि मैं तो मुझे सिखाया भी किसी ने नहीं, मुझे पता भी कुछ नहीं, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ
मुझे कैसे मतलब आम आदमी को तो ये भी नहीं पता होता कि आप श्री ग्रंथ साहब के 1430 सफ़े हैं, तो मुझे तो ये भी पता है कि 1152 सफ़े है आज को कुरान पाक के, और उसमें किस सफ़े पर क्या लिखा है, ये सब सतगुरु की कृपा है मेरे ऊपर। क्या आपने स्टडी की है कुरान की? जी नहीं, कुछ भी स्टडी नहीं किया, मेरे के ऊपर तो सतगुरु की रहमत ही हुई है। मैं तो खुद कई बार अकेला बैठा सोचता हूँ, इस निरंकार से बातें करता हूँ कि सच्चे पातशाह तूने ये कैसे करवा दिया मेरे से, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ, जानता भी कुछ नहीं, कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले उम्रा कर लो, फिर मैं उम्रा किया। पहली बार मैं जब गया तो रियाद से मैं डायरेक्ट गया उधर मदीने का उम्रा करके बाद में मैंने तवाफ़ किया मक्के का आके, और मक्के के बाद आके फिर मैं वापस आया रियाद में, क्योंकि रियाद और जिद्दा के विचकार में एक जगह है दरमियान में ताइफ तक हिंदू आदमी जा सकता है, लेकिन ताइफ से सड़क जो मुड़ती है ये मक्का को, उस सड़क पर हिंदू आदमी जा ही नहीं सकता। मुझे काजी ने इजाज़त दिया, वो वर्का जो है मैं लेके गया कार्ड, तो मुझे सुरतियों ने रास्ते में रोका। नहीं, आपको कहा नहीं कि आप पहले मुसलमान बनो तब हज करोगे? नहीं बोलते हो, ज़बरदस्ती नहीं किसी को बोलते हो, बोलते हैं कि मुझे कि आप कलमा पढ़ लो, तो मैं क्या, कलमा तो मुझे आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जो कलमा शहादत है जिसके पढ़ने से ये समझते हैं कि अभी मुसलमान बन गया, ये जिसको मेन जो कलमा है वो मैं इनको सुनाया। मैं क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु वाहदहु ला शरीका लहु वाशहदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब मैंने ऐसे बोला, वो कहते आप तो हैं ही मुसलमान, आपको तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, तू तो पहले ही सब कुछ जानता है। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, वर्का दे दिया ताकि मैं हज कर सकूं। तो पहली बार मैं उम्रा किया, फिर दूसरी बार मुझे पूछते हैं कि उम्रा सभी खलास, मैं क्या सभी खलास उम्रा, मैं क्या हो गया मेरा उम्रा। कहते मर्रा तानी अनस बिन सभी सरफ, मैं क्या अना सभी सरफ ले शनते सभी सरफ, हुकूमा आती कुल्लू सरफ, कुल्लू खर्चा हुकूमा आती। मैं क्या कहते जो भी गवर्नमेंट खर्चा देगी आपको, गवर्नमेंट ने खर्चा दिया मुझे, वो 80 रियाल दिए जो मेरा खर्चा हुआ था उस टाइम। उसके बाद फिर दूसरी बार उन्होंने फिर गवर्नमेंट के खर्चे पर मेरा उम्रा करवाया। दूसरी बार डायरेक्ट हम मक्का में गए, मदीना नहीं गए। पहली बार मदीना गए थे, दूसरी बार डायरेक्ट मक्का में गए। मक्का में जाके तवाफ़ किया, और उसके बाद बोलते कि अभी आपको अकबरी हज करवाना है। हमने 2009 हो गया, 2008 में मैंने 2 बार उम्रा किया, 2009 में फिर उन्होंने मेरे को साथ ले जाके 8, 9, 9, 10 मतौगे साथ में गए ताकि मुझे कोई मुश्किल ना पेश आए। जो वहाँ पर मार देते हैं हिंदुओं को, अगर पता चल जाए कि हिंदू आदमी इधर आया है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। जो ख़त्म कर देते हैं वही मेरे रक्षक बन के गए। काजी ने उनको मेरे साथ भेजा कि इसको कोई आँच ना आए, तो वो मेरे साथ गए। हमने जब तीसरी बार गए तो वहाँ पर दौरान तवाफ़, पहले तो हम ताइफ में जाके एहराम बांधा। एहराम होता है एक चिट्टा तौलिया होता है, वो बिना सीते के, वो नीचे बांध लेते हैं, एक ऊपर पहनते हैं, एहराम बोलते हैं उसको। एहराम बांध के ताइफ में एहराम बांधा। उसके बाद फिर हम मक्का में गए, जाके तवाफ़ करने लगे। जब दौरान तवाफ़ सिमरन करते हैं ये लोग, तो मैं वहाँ पर सिमरन करने लग गया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया कि जब आपने पंजाबी में सिमरन किया? हाँ, एतराज़ किया ना। मेरे साथ फतुआ एक जा रहा था, वो पाकिस्तानी था, पंजाबी था। तो तौसीफ़ुर रहमान मुझे बोलता है कि आप तो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो सिमरन कर रहा हूँ, जैसे आप सिमरन करते हैं वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। कहते नहीं, तुम तो कुछ और पढ़ रहे हो, हमारे वाला सिमरन नहीं करते। मैं कहा आप जो सिमरन करते हैं मुझे वो आता है। आप पढ़ते हैं कि लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीका लका लबैक, इन्नल हम्दा व नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। ए अल्लाह पाक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, हम तेरी शरण में आ गए हैं, हम तेरे पास पहुंच गए हैं। ए अल्लाह पाक, मैं तेरे पास हाजिर हो गया हूँ। लबैक ला शरीका लका लबैक, तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं है। ऐसे रब की शरण में हम आ गए हैं जिसका कोई बराबरी नहीं करने वाला। तो ऐसे रब की शरण में मैं पहुंच गया हूँ। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीका लका लबैक, इन्नल हम्दा व नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। मेरी हम्मद, मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना तेरे सामने है कि तू हमारे ऊपर दया कर। ये भी यही सिमरन करते हैं, तो मैं भी यही कर रहा था, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलते लाला इंते कलम गैर, मैं कहला माफ़ी कलम गैर, अना कलम सवा सवा इंते, इंते फ़ी अरबी, इंते कलम अरबी,
आना भी पंजाबी आना कलाम पंजाबी, कहते कलम सवा सवा है ना, मैं कहा ईवा आना कलम सवा सवा इनते, मैं कहा आप जो करते हैं मैं वही करता हूँ। कलम पंजाबी माफ़ी मुश्किल, आप पंजाबी में ही करते चलो, अगर हमारे वाला ही सिमरन करते हो। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने सिमरन की इजाज़त दे दी, तो मैं पंजाबी में ही जो सतगुरु ने आज हमें वक़्त के पातशाह ने हमें सिमरन दिया है, वही सिमरन मैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, मैं क्या उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था 1965 में। तो ये जाके 2009 में टाइम तो लगा, लेकिन सतगुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। सतगुरु जो एक बार अपने मुखारबिंद से उच्चारण कर दिया, उसने वचन ने पूरा होना ही होना है। साध संग कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और जो भी वहाँ अब तो कोई जा ही नहीं सका, जाके कोई वापस नहीं आज तक आ सका। दास 3 बार गया, 2 बार उम्रा किया, तीसरी बारी हज किया। हज करने के बाद वापस आ गया तो मतुए मुझे बोलते हैं फ़ी खलास इनते हज, मैं क्या ईवा हज फ़ी खलास। फिर बोलते हैं कि आप अजान दिया करो, मैं फिर अजान भी देने की फ़ी अरफ इनते कम अजान, मैं क्या ईवा आना फ़ी अरफ हम समझ रहा, मैं क्या नहीं। जब उन्होंने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, तो आपने उनसे पूछा कि मुसलमान बनकर मुझे क्या मिलेगा? हाँ, मैं पूछा उनको, मैं क्या कि अगर मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, मैं कलमा पढ़ लूँगा, क्या जन्नत में मुझे क्या मिलेगा? वो कहते जन्नत में दूध की नदियाँ बहती हैं। मैं क्या मैंने दूध की नदियाँ में क्या करना, नहाना है मैंने? मुझे को तो पाइया आधा किलो दूध बहुत है, यहाँ 3 रियाल में मैं क्या 1 लीटर दूध की बोतल मिल जाती है। तो मैंने क्या करना, मैं क्या नदियों में, मुझे तो जितना ज़रूरत है 3 रियाल का दूध लेके आऊँ, मेरा 2 दिन ख़त्म नहीं होता, मुझे तो दूध यहीं मिल जाता है। फिर वो मुझे कहने लगे कि वहाँ हूरें मिलेंगी। तो मैं क्या मैं हूरों को क्या करना, मेरे घर में हूर बहुत सुंदर है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे बढ़िया मुझे कोई नहीं लगता। बाकी तो साढ़े मेरे मुर्शिद ने बताया कि देख पराइयाँ चंगियाँ मामा भैणा तियाँ जाने। जब हम किसी को देखते हैं तो ये अपनी माता है जो अपने से बड़ी है, जो अपने बराबर की है तो वो मेरी बहन है, जो छोटी है वो मेरी बेटी है, इसलिए मुझे हूरों की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बोलते तू नहीं बाज आएगा, तू नहीं हमारी बात मानेगा, तू ऐसे कर, तू ये बता कि तू 5 वक्त की नमाज पढ़ा सकता है। कौन सी होती है 5 वक्त, ये बता पहले, कि फजर की, जोहर की, असर की, मगरब की और ईशा की। ये 5 टाइम जो पहले अजान देते हैं, अजान का मतलब सद्दा, बुलावा, बुलावा जैसे हम कहते हैं ना कि आओ जी संगत चलिए, ऐसे ये भी बुलाते हैं। तो वो अजान देते हैं, जब मैं वो अजान आपको बोल के सुनाता हूँ, मैं जितनी बार बोलूँगा नोट करना, ये उतनी बार ही बोलेंगे, एक बार भी ज़्यादा नहीं कम नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदन मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदन मोहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातुल खैरुल मिन नौम। ये लाइन जी मैं हुण बोल रहा, ये सिर्फ फजर च ही बोली जाती है, जोहर च, आसर च, मगरब च, ईशा च ये लाइन नहीं बोली जाती जी मैं हुण बोल रहा। अस्सलातुल खैरुल मिन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है अजान। 5 टाइम 4 टाइम अजान इदां ही पढ़ी जाती है, लेकिन जी फजर की अजान है वो एक लाइन जी ज़्यादा मैं तुहानूं बोल के दसी है, वो पढ़ी जाती है, अस्सलातुल खैरुल मिन नौम, मतलब नींद नालों नमाज चंगी आ। असलाह कहते आ इबादत करन नूं, रब दा नाम लैण नूं, असलाह खैरुल कहते चंगे नूं। टाइम जो अजान दिंदे ना असीं, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ सददे हाँ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब देखो किड्डा सुंदर है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रब ही सब तो वड्डा है मित्रों, रब ही सब तो वड्डा है। अशहदन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदन का मतलब कि मैं शहादत दिना, मैं गवाही दिना। अशहदन ला अन्न मतलब मैं, अशहदन मैं गवाही दिना, अशहदन ला इलाहा इल्लल्लाह कि ਇਹਦੇ बराबर कोई नहीं है, रब के बराबर कोई भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वक़्त के पातशाह उस टाइम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का नाम आया, क्योंकि उस वेले दे जो पैगंबर सी मुहम्मद साहब सी, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੋ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਮਰਾ, ਜਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਕੰਕਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੰਕਰੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਰਾ ਕਬੀਰ, ਜਮਰਾ ਸਗੀਰ, ਜਮਰਾ ਬਸਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਕੰਕਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੱਤ ਹਦਾ ਹਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਰਾ ਹੀ ਜੀ ਅਨਾ ਸਭੀ ਹੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਦਾ ਫੀ ਜਮਰਾ ਕਬੀਰ, ਹਦਾ ਫੀ ਜਮਰਾ ਸਗੀਰ, ਹਦਾ ਫੀ ਜਮਰਾ ਬਸਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਫੀ ਤਾਨੀ ਫੀ ਗੈਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਮਰਾ ਹੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਫੀ ਜੁਵਾ, ਜਮਰਾ ਫੀ ਜੂਆ, ਜਮਰਾ ਈ ਜੀ ਅਨਾ ਸਭੀ ਹੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਦਾ ਫੀ ਹਜ਼ਰ, ਹਾਦਾ ਫੀ ਹਜ਼ਰ ਅਨਾ ਹੁੱਤ ਹਾਜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ 32 ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 32 ਸਿੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 32 ਸਿੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਮਰਾ ਕਬੀਰ, ਜਮਰਾ ਸਗੀਰ ਤੇ ਜਮਰਾ ਬਸਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਲਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਮ ਅਲਹੀਨ ਮੁਸਰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਂ ਆ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 5 टाइम। उसमें लिखा है वलक़द खलक़ना अल इंसान, खलकत में इंसान को पैदा मैंने किया है। अल्लाह पाक फरमा रहा है खलकत में इंसान को पैदा करने वाला मैं हूँ। वलक़द खलक़ना अल इंसान व नेलम मात वसूस व नफ्सा, मुझे इल्म है, नेलम का मतलब इल्म है। व नेलम मात वसूस कहते हैं अंदर की बात, हर एक के जो दिल की बात है मुझे पता है। व नेलम मात वसूस व नफ्सा, नफ्स कहते हैं जेंडर को, तीनी है चाहे आदमी है चाहे कोई भी है, हर एक के अंदर की बात मुझे मालूम है। व नेलम मात वसूस व नफ्सा व नहनो अकरबो, नहनो यानी अना मैं, अकरबो का मतलब करीब हूँ, नज़दीक हूँ। नहनो अकरबो अलैह मिन, किस चीज़ से? मिन तो, किस चीज़ तो नेड़े हैं मैं। अलैह मिन हबल ब्रीद, हबल कहते हैं नाली को और ब्रीद कहते हैं जिस नाली से कोई चीज़ आ भी सकती हो जा भी सकती हो। हबल ब्रीद का मतलब है श्वास नाड़ी, इसमें हमारे श्वास आते भी हैं और जाते भी हैं। हबल ब्रीद का मतलब श्वास नाड़ी, शाह रग नू कहते हैं। मैं हर एक की शाह रग से भी नज़दीक बसता हूँ। ये अल्लाह पाक का फरमान है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। जो भी कुछ हो रहा है मैं हर एक की घट घट की जानने वाला हूँ। आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने हज किया है? हाँ जी, जो कार्ड दिया है उसका मैं प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ ना। किस नाम पर आपने हज किया है, किस नाम पर? जो मेरा पासपोर्ट ते नाम है ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, मैं उसे नाम दे नाल ही हज किया है। आपने सुन्नत नहीं आपकी हुई? नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं जैसे पैदा हुआ था वैसे ही आज हूँ। ये कहते हैं ना, ये ज़बरदस्ती करते हैं, ये मुस्लिम लोग वो मुस्लिम बना देते हैं, सुन्नत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कई गल्लां बणियां हुई हैं, लेकिन ये झूठ है। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी को कहते कि सुन्नत कराओ। मैं तो जैसा पैदा हुआ था वैसा ही आज हूँ,
वैसे ही मैं वहाँ पर हज करके आया हूँ। ऐसे ऐसे हैं कि आज किसी मुहम्मदन से बात करते हैं तो वो मानते नहीं हैं कि जब तक वो मुसलमान नहीं बनता तब तक वो हज नहीं कर सकता। तमुओं का दिया हुआ कार्ड जिसके ऊपर मेरी रहायश भी उन्होंने दी है, एक साइड में रहायश दी है, एक साइड में मेरी फ़ोटो लगी हुई है उसके ऊपर कि ये हज कर सकता है। और वहाँ के मतमुओं के टेलीफोन नंबर है, आप सऊदीया में टेलीफोन करके 2009 के हज में मेरा चेहरा आपको सारा नज़र आएगा। जब वहाँ जाने लगे तो बहुत सारे वहाँ के मुस्लिम लोग मुझे देखने के लिए आए। वहाँ के प्रबंधकर्ता जो है ना मक्के के, बहुत 60-70 शेख वहाँ मुझे मिलने के लिए आए और आ करके वो हैरान होते हैं कि ये कैसे एक हिंदू आदमी इतना कुरान भी जानता है और हमारे साथ आके बातें करता है। तो वो मुझे बोलते हैं कि फ़ी आरफ इंते आयतल कुर्सी, आपको आयतल कुर्सी आती है? मैं क्या ईवा ना फ़ी आरफ आयतल कुर्सी, मैं क्या आती है। एक बोलता गुल आयतल कुर्सी सुनाओ, कहता आयतल। तो मैंने उनको सुनाई, मैं आपको भी सुनाता हूँ। बोला कि हादाफ़ी सफ़ा रकम तला तसबीन, मैं क्या ये कुरान पाक में 73 नंबर सफ़े पर है आयतल कुर्सी, और ये आयत नंबर है बितन खमसा खमसीन, 255 नंबर आयत है ये। तो मैंने जब उनको सुनाई, मैं आपको भी सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, याइलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वल्ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वल्ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। जब मैंने ये सुनाई तो वहाँ के बड़े बड़े शेखों ने ऐसे रियालों की वर्षा कर दी मेरे ऊपर, तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरी बेटी कहने लगी जब उसने वो DVD देखी बनी हुई, तो बोलती कि डैडी आप तो रो पड़े। मैं कहा बेटा रोया नहीं, मेरा दिल भर गया था कि दुनिया में कितने गैर मुस्लिम हैं, हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में है, लेकिन सच्चे पातशाह ने मेरे को चुना वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे इजाज़त दी थी, मुझे वर दिया था बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने। इसलिए मेरा दिल भर गया, इसलिए मेरी आंखों में पानी आ गया। ये वैराग के आंसू थे, रोया नहीं था मैं। रोना और चीज़ होती है, वैराग और चीज़ होता है। मेरे हृदय में वैराग पैदा हो गया था कि सतगुरु की कितनी रहमत है मेरे ऊपर, कि जो यहाँ तक ले भी आया और वापस भी ले आया। अव्वल तो कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, पहुँच भी जाए तो वापस नहीं आज तक कोई हुआ वहाँ से। जो भी जाता है उसे ख़त्म कर देते हैं। मेरे ऊपर तो सतगुरु की कितनी रहमत है, इसलिए मेरा दिल भर गया था। प्रितपाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सारे संसार ਨੂੰ ये मैसेज देना चाਹੁੰਦਾ कि ਸਾਡੇ दिल 'ਚ फ़र्क हो सकता, लेकिन अल्लाह गॉड राम वाहिगुरू 2 या 3 नहीं है, 4 नहीं है। कुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलाद वलम यकुन लकुफुवन अहद। एको सिमरो नानका जो जल थल रिहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जो आदिकाल से आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक होसी भी सच। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਣਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆਨ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਪਿੰਗਲਾ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਏ। ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਚਾਹੇ ਲੁੰਜਾ ਘਾੜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਲੱਖ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ नहीं हुई। आज सतगुरु वक़्त के मालक माता सुदीक्षा जी महाराज सब के उपर दया कर रहे हैं। दुनिया के हर प्राणी नूं इस सच दे नाल मिला के अंदर दे
ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿਰਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਤੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।